Hello students, in today's lecture we will continue with the problems to find numerical solution of one-dimensional heat equation. In last lecture we solved it using Bender-Schmidt method. Now we will see the second method for it called as Crank-Nicolson method. So we will be having same one-dimensional heat equation here. Let me write it again. Consider the one-dimensional heat equation, that is a partial differential equation. Its standard form was dA by 2u by dA by x square minus a into dA by u by dA by t is equal to 0. And it was with the initial condition u of x comma 0 equal to f of x, and the boundary conditions u of 0 comma t is equal to u of L comma t is equal to 0. So this L is any number and this may be any value in terms of t, a function in terms of t, or it can be a constant, say 0. Then for Crank-Nicolson, k will be a into h square. Just recall what was this for Bender-Schmidt method. It was a upon 2 into h square. So here formula is different and k is again increment in the terms of t and h is increment in the terms of x. So k equal to a into h square will be the formula for Crank-Nicolson method. मेथड फिर से हम डायरेक्टली प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे, तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में जो चेंज हो रहा है वो नोट कर लीजिए. सो लेट अस हैव द क्वेश्चन. क्वेश्चन विल बी सॉल्व यूजिंग Crank-Nicolson मेथड. तो हमने लास्ट लेक्चर में Bender-Schmidt मेथड से जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दैट कैन ऑल्सो बी सॉल्व हियर यूजिंग Crank-Nicolson मेथड. Solve using Crank-Nicolson simplified formula dA by 2u upon dA by x square minus dA by u upon dA by t is equal to 0 with boundary conditions u of 0 comma t as well as u of 1 comma t is equal to 0 and initial condition u of x comma 0 is equal to 100 into x minus x square with the value of h given as 0.25 for one time step. So see, this is the question which we need to solve using Crank-Nicolson method. Solution here. Again we will identify given differential equation with the standard form of heat equation. So you will notice that value of a is 1 again. H is given in the question, it is 0.25. So now we can easily find k. K is a into h square. Using Crank-Nicolson method, k, which is increment in t, is given by a into h square. So just substituting values of a and h, a is simply 1, h is 0.25, तो हमको उसका स्क्वायर फाइंड करना है. So of course k will be 0.0625. Now see, again we will consider the similar table जैसे हमने Bender-Schmidt मेथड में किया था. इनिशियल सॉल्यूशन जैसे हमने वहां पे आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसे ही आएगा, बस थोड़ा सा मेथड चेंज होगा. Bender-Schmidt का मेथड आप रिकॉल कर सकते हो. अब यहाँ पे आप चेंज देख लीजिए, नोट कर लीजिए Crank-Nicolson मेथड में क्या चेंज है. सो फर्स्ट स्टेप में आई एम राइटिंग अगेन द वैल्यूज ऑफ x. So you can again notice that x varies from 0 to 1. You can see it here. x का initial value 0 है, final value 1 है. So given interval is 0 to 1. And we need to go in the steps of h, that is 0.25. So 0.25 आपको add करना है. First value हो गया 0, then add 0.25, then again add 0.25, 0.25 add करते जाना है till you will get the last term which is 1. And now the values of t. So again t का initial value 0 है. You can observe that here. Again first value of t is 0. What is the final value of t? यहाँ पे given है for one time step. तो बस next step में हमको solution find करना है. और t का increment क्या है? It is k. So we have to add 0.0625. और क्वेश्चन में one time step दिया है, मतलब हमको यहीं तक solve करना है. अदरवाइज अगर 2 टाइम स्टेप है तो हम और 0.0625 यहाँ पे ऐड करेंगे, सो हमको नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा. एंड वी विल कीप ऑन एडिंग दैट 0.0625 टिल द लास्ट वैल्यू ऑफ t. ओके, बट इन दिस प्रॉब्लम लास्ट वैल्यू ऑफ t इज 0.0625. अब इनिशियल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने बेंडर-श्मिट फॉर्मूला में किया.
ओके, सो सी हियर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस देख लेते हैं पहले. u ऑफ 0, t इज इक्वल टू 0. x का वैल्यू फिक्स है 0 पर और t चेंज हो रहा है. t चेंज हो रहा है मतलब हम कॉलम में लिखेंगे. x का वैल्यू फिक्स है 0 पर और t चेंज हो रहा है तो आंसर आ रहा है 0. सो ओनली टू वैल्यूज आर हियर, 0 and 0. एंड सिमिलरली u ऑफ 1, t is also given as 0. So these two values will be again 0. Now remaining is initial solution for the first row that we will get from the initial condition u of x, 0 equal to 100 into x minus x square. तो जब t फिक्स है 0 पर, that's why I am writing in the first row, और x चेंज हो रहा है तो आंसर ये आएगा. मतलब आप x का फर्स्ट वैल्यू 0 पुट करोगे so आंसर विल बी 100 into 0. आप x का सेकेंड वैल्यू पुट करोगे 0.25, सो आंसर विल बी 100 इंटू दैट कैलकुलेशन 0.25 माइनस 0.25 का स्क्वायर. ओके, सो वी कैन यूज कैलसी टू फाइंड द वैल्यूज हियर फॉर द सेकेंड स्टेप. जस्ट सी इट हियर. सो इट इज 100 इंटू x माइनस x स्क्वायर. ओके, वी विल प्रेस दिस बटन ऑफ CLC. x का फर्स्ट वैल्यू 0 है, उसके लिए आंसर 0 आना चाहिए जो हमको ऑलरेडी मिल चुका है. सो वी कैन वेरीफाई इट. नाउ प्रेस इक्वल, सब्सटीट्यूट द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x दैट इज 0.25. सो योर आंसर विल बी 18.75. नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x is 0.5. So after substituting that we will get the answer 25. Then x का next value है 0.75. So for that answer is again 18.75. And for last value of x that is 1, answer should be 0. That we can again verify. So it is 0. Okay. Now we have to find this 3 unknowns here only. So यहाँ पे हमको unknowns directly नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा calculations perform करना है. So let me write it as u1, u2 and u3. ये notation use कर लेते हैं हम. Okay. Now see how to find these points. ओके, तो आप बेंडर श्मिट मेथड रिकॉल कीजिए. वहां पे एवरेज था 2 ही पॉइंट्स का, यहां पर एवरेज होगा 4 पॉइंट्स का. तो आपको जो भी पॉइंट फाइंड करना है, सपोज हमको ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, आई एम कॉलिंग इट एज ई. सो हाउ टू फाइंड इट, आप क्या करोगे, उसके ऊपर का जो पॉइंट है वो नहीं लेना है, उसके एडजेसेंट पॉइंट लेना है. सो आई एम कॉलिंग देम एज ए एंड बी. तो बेंडर श्मिट में तो इतना पार्ट था, लेकिन यहां पे एडिशनल ये भी पॉइंट्स है, दिस 2 पॉइंट्स. से आई एम कॉलिंग इट एज सी and D. So average of this 4 point will be E. E क्या होगा, A plus B plus C plus D upon 4. ठीक है, तो मेथड क्या है, आपको E के दोनों एडजेसेंट पॉइंट लेना है और उनके ऊपर के पॉइंट लेना है जो भी पोजीशन में. दैट विल बी एवरेज ऑफ दैट पॉइंट्स विल बी E. ओके, सो यूजिंग दिस सी व्हाट विल बी U1. U1 विल बी एडजेसेंट पॉइंट ले लीजिए, या पहले मैं ये 1/4 लिख लेता हूं एवरेज का. नाउ सी द एडजेसेंट पॉइंट 0 and U2. सो U1 फाइंड करने के लिए हमको U2 रिक्वायर्ड है, इसके लिए आंसर डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, थोड़े से कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है. और उनके ऊपर के पॉइंट्स, सो 0 and 25. सो इट इज 0 and 25. ओके, सो लेट मी रीराइट इट एज U1 माइनस U2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 25. कॉल इट एज इक्वेशन 1. What I am doing, just writing U2/4 on the LHS, so there it will be minus U2 upon 4, and this 20/4 and this 25/4 as it is. Now similarly, how we will get U2? U2 will be 1/4. एवरेज का टर्म 4 टर्म्स है तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा. दोनों एडजेसेंट पॉइंट, तो U2 फाइंड करने के लिए हमको रिक्वायर्ड है U1 एज वेल एज U3 एंड उसके ऊपर के पॉइंट्स. So 18.75 and 18.75. So plus 18.75 plus 18.75. Okay. So I will rewrite it again as minus U1/4. ये वाला टर्म इधर माइनस में लिख सकता हूं मैं, प्लस U2 दिस टर्म एज इट इज. अगेन U3/4 LHS पे लिखना है तो माइनस हो गया, और RHS है 18.75 प्लस 18.75 अपॉन 4. So we can see what that will be, 18.75 plus 18.75 upon 4. So it will be 9.375. Let us call it as equation 2. Okay, so यहाँ पे U1, U2, U3 तीनों वेरिएबल्स आ गए, तीनों अननोन्स आ गए. सो आई कैन राइट हियर 0 U3. यहाँ पे U3 एब्सेंट है तो उसको मैंने लिख दिया 0 U3. अब थर्ड फाइंड करना है हमको U3. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हाट विल बी U3, उसके दोनों एडजेसेंट पॉइंट
मतलब u2 और 0 और उनके ऊपर के पॉइंट्स मीन्स 25 एंड अगेन 0. So see, as we discussed, what will be u3? It will be average of this 4 points. उसके दोनों adjacent point लेना है, that is u2 and 0. और वो adjacent point के ऊपर वाले points लेना है. So 25 and 0. 25 and again 0. So I will rewrite it as minus u2 by 4. ये टर्म को मैंने LHS पे लिखा हूं, प्लस u3. RHS will be again 25 by 4. तो यहाँ पे u1 एब्सेंट है, so I can write it as 0 u1. Okay, so we will solve this 3 simultaneous equation now using Calc. See the equation 1, 2 and 3. We can use Calc to solve that. We will easily get the values of u1, u2 and u3. Okay, so I can do it here for you. So in equation we are having 3 unknowns. So a1 है u1 का coefficient, that is 1. Then u2 is, then b1 is coefficient of u2, that is minus 1 by 4. Then u3 का coefficient है 0 और RHS पे constant term है 25 by 4. Please make the correction here, it is 25 by 4. Then from the second equation, minus 1 by 4. Second coefficient है 1. Then again minus 1 by 4 and constant term is 9.375. And then from the last equation, first coefficient is 0, then second is minus 1 by 4, then third is 1 and constant term on RHS is again 25 by 4. So see what will be the answer. X means u1 is equal to 9.8214, u2 will be 14.2857 and u3 will be 9.8214 again, 9.8214. Okay, so this is the required values of u1, u2 and u3. If you want, you can write it in the form of table again, no need of that. Okay, so this is the way to solve problems using Crank-Nicolson method. Okay, so of course comparatively calculations ज़्यादा है Bender-Schmidt method से, but problem simple है. Let us consider one more question. So see the second question. Again we have to solve it using Crank-Nicolson method. Same one dimensional heat equation given है. Uxx means die by 2u by die by x square minus ut means die by u by die by t is equal to 0. तो फिर से a का वैल्यू 1 है. सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस है u ऑफ 0 कॉमा t इक्वल टू 0 और सेकेंड है u ऑफ 5 कॉमा t इज इक्वल टू 100. इनिशियल कंडीशन है u ऑफ x कॉमा 0 इक्वल टू 20x. h का वैल्यू हमको 1 लेना है एंड अगेन वी हैव टू सॉल्व इट फॉर वन टाइम स्टेप ओनली. तो एक ही स्टेप में हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा. ओके, सो बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, लेट अस आइडेंटिफाई a फर्स्ट. h इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो k आप इजीली फाइंड कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला a इंटू एच स्क्वायर. सो k इज इक्वल टू 1 अगेन. नाउ वी विल प्रिपेयर दैट टेबल, इनिशियल कंडीशंस, और फिर सॉल्व करना है क्रैंक-निकोल्सन मेथड से. सो सी हियर वैल्यूज ऑफ x इन द स्टेप्स ऑफ h. h इज इक्वल टू 1 है, तो x का फर्स्ट वैल्यू है 0 और फाइनल वैल्यू आप यहां पे देख सकते हो, इट इज 5. ओके, 0 to 5 दैट आर द वैल्यूज ऑफ x. और t का फर्स्ट वैल्यू 0 से है और वन टाइम स्टेप के लिए जाना है, तो नेक्स्ट वैल्यू होगा k, दैट इज 1 हियर. सो वी जस्ट नीड टू ऐड 1 हियर. सो 1, 2, 3, 4 एंड द लास्ट वैल्यू विल बी 5. एंड सिमिलरली t फर्स्ट वैल्यू इज 0, नेक्स्ट वैल्यू विल बी k एंड k इज इक्वल टू 1. ओके, अब इनिशियल कंडीशंस देख लीजिए क्या गिवन है. u ऑफ 0 कॉमा t इज इक्वल टू 0. तो जब x फिक्स है 0 पर और t चेंज हो रहा है, मतलब आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे वैल्यूज, क्या आंसर है 0. सो इट इज 0 एंड अगेन 0. सिमिलरली u ऑफ 5 कॉमा t इज इक्वल टू 100. तो जब x फिक्स है 5 पर और t चेंज हो रहा है, तब आप लिखोगे लास्ट कॉलम में आंसर, दैट इज 100. t का कोई भी वैल्यू है पर x जब 5 है तो आंसर है 100. एंड दिस वन u ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू 20x. तो फर्स्ट रो की वैल्यूज यहां से मिलेंगी क्योंकि x चेंज हो रहा है और t फिक्स हो गया 0 पर.
तो क्या आंसर आएगा 20 इंटू एक्स, एक्स का जो भी वैल्यू है। तो फर्स्ट वैल्यू है एक्स का 0, तो उसके लिए आंसर ऑलरेडी हमको 0 मिला है। नेक्स्ट इज 20 इंटू 1, देन 20 इंटू 2, 20 इंटू 3 एंड लास्ट इज 20 इंटू 4। 20 इंटू 5 का आंसर हमको ऑलरेडी यहां पे मिला है, जो दोनों तरफ से मैच हो रहा है। अब यहां पे हमको अननोन्स फाइंड करना है, सो लेट मी राइट देम इन दिस फॉर्म फर्स्ट। सो u1, u2, u3 एंड u4। यहां पे अब हमको 4 अननोन्स फाइंड करना है, u1 से लेके u4 तक। ओके, सो सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो मेथड आपका सेम है, ट्राई टू अप्लाई दैट क्रैंक निकोलसन मेथड हियर। u1 हम कैसे फाइंड करेंगे, इट इज एवरेज ऑफ 4 वैल्यूज, सो डिवाइड बाय 4 करना है। और 4 वैल्यूज क्या है, u1 के दोनों एडजेसेंट पॉइंट, दैट इज 0 एंड u2, और उनके ऊपर के पॉइंट्स, सो इट इज 0 एंड 40. Okay, so we will rewrite it as u1 minus u2 by 4 is equal to 40 by 4, that is 10. Let us call it as equation 1. Next is u2. u2 हम कैसे फाइंड करेंगे, अगेन इट इज एवरेज ऑफ 4 वैल्यूज। कौन सी 4 वैल्यूज है, उसके एडजेसेंट पॉइंट और उनके ऊपर के पॉइंट्स, सो इट इज u1 plus u3 plus 20 plus 60. Okay, so what we will be having here, let me write it as u1 by 4 with minus sign on LHS, this u2 as it is, again minus u3 by 4 यहां से, and RHS will be 60 plus 20, 80 by 4. Call it as equation 2. Then u3, u3 का फॉर्मूला हो गया 1 by 4, उसके एडजेसेंट पॉइंट है u2 एंड u4, और उनके ऊपर के पॉइंट्स है 40 एंड 80. ओके, सो वी विल रीराइट इट एज माइनस u2 बाय 4 प्लस u3 माइनस u4 बाय 4 इज इक्वल टू 30. कॉल इट एज इक्वेशन 3. ओके, सो वी विल बी हैविंग वन मोर इक्वेशन. अब हमको u4 फाइंड करना है, तो उसके एडजेसेंट पॉइंट u3 एंड 100 प्लस 60 एंड अगेन 100. ओके, सो यहां पे मैं क्या करता हूं, जहां पे जो कोएफिशिएंट एब्सेंट है, जहां पे जो अननोन एब्सेंट है, उसको हम 0 के कोएफिशिएंट के साथ लिख लेते हैं. यहां पे u3 एब्सेंट है, ओके, एंड इन द लास्ट वन u1 इज एब्सेंट, और नो नीड ऑफ दिस एक्चुअली. सो सी इट अगेन नाउ. फोर्थ इक्वेशन विल बी u4 इज इक्वल टू 1 by 4 u3 प्लस 100 60 प्लस 100. ओके, सो u4 इज इक्वल टू 1 by 4 u3 plus 100 plus 60 plus 100. Okay, it is 1 by 4 u3 plus it is 260. Okay, now see we are having actually 4 equation. So कैल्सी में तो हमको सिर्फ 3 इक्वेशन इन 3 अननोन सॉल्व करके देता है. So how to solve this 4th equation? So what we will do, ये जो हमने 3 इक्वेशंस आइडेंटिफाई किए हैं, यहां पे देखिए आप u4 फर्स्ट 2 इक्वेशन में तो एब्सेंट है, सिर्फ 3rd इक्वेशन में प्रेजेंट है. तो हम क्या करेंगे, u4 का वैल्यू यहां से 3rd इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिकॉज u4 का वैल्यू u3 के फॉर्म में. तो ये इक्वेशन भी वापस आपको u1 u2 u3 में मिल जाएगा, जैसे कि ये दोनों इक्वेशन है. सो अगेन वी कैन सॉल्व देम इजिली यूजिंग कैल्शियम. सो मैं क्या करूंगा, 3rd इक्वेशन में u4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां से. ओके, सो सी द इक्वेशन 3 अगेन. Consider equation 3 again. It is minus u2 by 4 plus u3 minus u4 by 4, और u4 का आंसर ये है. ओके, इट इज 1 by 16, बिकॉज यहां पे ऑलरेडी अपॉन 4 है u4 by 4, और यहां पे भी अपॉन 4 है, सो इट इज 1 by 16 u3 plus 260. And RHS as it is, it was 30 in the equation 3. So it will be minus u2 by 4 plus u3 का कोएफिशिएंट हम देख लेते क्या है. यहां पर u3 का कोएफिशिएंट है 1, और यहां पे है minus 1 by 16. So what will be that? So 1 minus 1 by 16. What you will get? Of course 15 by 16. You will get here 15 by 16. So u3 का कोएफिशिएंट हो गया 15 upon 16. And what will be the constant term? I will be writing it on RHS directly. Constant term will be, यहां पे है minus 260 upon 16, तो RHS में हम उसको लिख सकते हैं plus 260 upon 16. So we will be having here 30 plus
260 upon 16. So your answer will be 46.25. 46.25. Let us call it as equation 4. Okay. So now what we need to do, we have to solve equation 1, 2 and 4 using calci. आप देख सकते हो इक्वेशन 1 में है u1, u2, u3. इक्वेशन 2 में भी है u1, u2, u3. And here in equation 4 again u1 with the coefficient 0, u2 and u3. Okay. So you can solve it using calci. I am writing the answer directly. u1 will be 20, u2 will be 40 and u3 will be 60. Okay. Solve equation 1, 2 and 4 using calci. Okay. You should get this answer. So only u4 is remaining now. So we can substitute the value of u3 in this equation. u3 is 60. So if you put it here, it is 60 plus 260 means 320 upon 4. So you will get the answer for u4 also. That will be 80. Okay. So this is the way to solve problems using Crank-Nicolson method. Thank you.